up to 10 big ships that brought revenue. They took Hajj pilgrims there, and there used to be a lot of trade. And when you're interested in knowing the money that Mughal women had and all the fallacies that British had created, that these are from harems and women have no power, only men have power, and there is incest in the family and all that. There's so much more new research that is available in the power of the Mughal women, so you should look at it. But coming back to the story. So this continued, but the first big blow that the Mughals got was in the 1757 Battle of Plassey. Again, if you know remember a little bit of history. So okay, in 1722 when the Lucknow kingdom got set up, there were two more kingdoms that got set up around the same time. One is the principality or the Nawabi in Bengal. This was not based in Calcutta. This was not based in Dhaka. Do you have an idea where this is based? Anyone? Bengal Nawabi, where was this based? Anyone? If you study history, if you know. Okay. So this was based in Murshidabad. Based in Murshidabad, this is the second Nawab, this is the second setup. The third breakaway empire from there became called and stayed for the longest, which was Nizami in Hyderabad. Right? So the Nizams in Hyderabad. So Nizams in Hyderabad, there were two kind of Nawabs from two different places. Yeah. So these were three things got set up. So in the Battle of Plassey, and mind you, Bengal was the largest province. The largest province, maximum revenue that came. But after Plassey, when Sirajuddaulah, who was the Mughal emperor, Mughal Nawab at that time, who was defeated by Robert Clive and 8,000 soldiers and some 44 cannons, right? So, and that's what took down a standing army of about 40,000 Mughals and more. Yeah. But the hit on the spinal cord of the Indian setup was the Battle of Buxar in 1764. In 64, what happened was the Mughal emperor Shah Alam II, the then Bengali Nawab, which is Mir Qasim, and the Nawab of Lucknow, Shujauddaulah, then Nawab of Lucknow, Shujauddaulah. These three came together and they thought they will get the British. Right? It was a very, very close fight, but the British won. Now, why is this important? This is the one that gave the British the right to collect Diwani or tax from all of Bengal. Right? So there is something called the Treaty of Allahabad. You should read about the Treaty of Allahabad. The Treaty of Allahabad, this is what happened, that everybody, they got the rights to collect tax from the Indians, and to ensure that the tax is collected in the right manner and to ensure that लोग पैसा न खा ले, तो उन्होंने एक पोजीशन बनाई जिसका नाम था रेसिडेंट. So someone who will reside in your kingdom, he is the administrative ruler or administrative standard, and आप अपना, so इसमें देखो, remember East India Company is not the government of England. East India Company is a company. It's a company that has been set up in Leadenhall Street on 31st of December 1599, where people have made investments and that they will go and sell products and they'll get return on their money. So ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया चलाने से कोई मतलब नहीं. उनको इंडिया से पैसे लेके लीडनहॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टर्स को देंगे, तो उनको लखनऊ एडमिनिस्टर नहीं करना, उनको टैक्स उठाना है. तो उन्होंने नवाब को बोला कि आप दुकान चलाओ, टैक्स हम लेंगे. राइट? एंड दैट इज व्हाट हैपेंड व्हेन द रेजिडेंट हैड एन आई ऑन एवरी सिंगल थिंग दैट यू डू. सो आप जहाँ खड़े हैं, ये लखनऊ के रेजिडेंट के रहने की जगह, ये जगह 12 साल में बने हैं. इस जगह ये सेल्फ सफिशिएंट यूनिट था. ये जो सामने गेट देख रहे हैं, इसका नाम बेली गेट है. दिस वाज सेट अप बाय द फोर्थ नवाब ऑफ लखनऊ फॉर द रेसिडेंट, एंड दिस वाज इनॉग्रेटेड फॉर द रेसिडेंट. एंड दिस प्लेस वाज सेल्फ सफिशिएंट with hospitals, mosques, places of other places of worship, banquet halls, houses. जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ बचा खुचा जो इसका बचा है. दिस वाज अ फुल सेल्फ सफिशिएंट यूनिट.
Kiran, come in the front. So this is a place of residency building called Dr. Fire's house. Now Dr. Fire's house was built up into two slopes. Okay, it was built upon two slopes where one surge of the slope consisted of the underground, the swimming pool, and the different places of the residency building. Okay, where usually in the underground, the Britishers, they stayed there for the sake of keeping themselves a little, cold because of how cold-blooded they were. Let's not get into the cold and, the cold humor I have. But see, Britishers, they weren't very warm inside because they stayed in a place called England, which was not very warm. So they were not at all very fascinated and infatuated with warm weather like India, which is why they built up an underground for it to make their family and children and women stay there. One of the places, there was also a swimming pool there for the normal leisurely facilities. And there was this one of the places, one of the slopes of this house was, see, Dr. Fire was a surgeon. He was a surgeon for this residency building. Okay, so one of the slopes also consisted of the surgeon equipment area. Now let's go downstairs as to see what is inside here. Okay, I'm literally excited now. Let us see what is inside here. So
लखनऊ, जो अपनी नज़ाकत, अपनी तहजीब के लिए अक्सर जाना जाता है। आप चौंकेंगे सुन के कि मैं आपको आज ऐसी जगह पे लेके आई हूँ जहाँ पे लखनऊ अपनी तहजीब के लिए नहीं, अपने करज, अपनी बहादुरी, अपनी वीरांगनाओं के लिए भी जाना जाता है। जहाँ पे पूरी दुनिया, पूरा इंडिया केवल वीरों को जानता है, वहाँ पे ये जगह, लखनऊ जैसी जगह, सिर्फ अपनी तहजीब और नवाबों के लिए नहीं, पर अपनी वीरांगनाओं के लिए भी जाना जाता है। कौन सी वीरांगनाओं? चलिए मैं बताती हूँ। बेगम आज़द महल का नाम आपने कभी सुना है? लखनऊ में एक जगह है बेगम आज़द महल की तरफ, बेगम आज़द महल पार्क। बेगम आज़द महल पार्क क्या है? विक्टोरिया पार्क के नाम से जो जाना जाता था 1957 में, जिसको बेगम आज़द महल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया था। बेगम आज़द महल ने, अब भले ही वो पर्दे में रहती थी, उनको किसी ने देखा नहीं है आज, पर बेगम आज़द महल ने अपने इन फोर्सेस को कलेक्ट करके साथ में संगठित होके 1857 की घेराबंदी, उस घेराबंदी में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने साथ दिया था, वीरों का नाम रोशन किया था, तो वो वीरांगना थी बेगम आज़द महल। बेगम आज़द महल का नाम मैं क्यों ले रही हूँ? यहाँ पे इसी जगह रेसिडेंसी साजिद अली खान, एक नवाब 19th सेंचुरी का, जिसने इस बिल्डिंग बेलीज गेट का निर्माण किया। किसके ऑनर में? कैप्टन जॉन बेली। कैप्टन जॉन बेली यहाँ के रेसिडेंट थे उस वक्त, 19th सेंचुरी के रेसिडेंट थे, जिनके ऑनर में ये सब कुछ बनवाया गया था। अब 1857 की वो मशहूर लखनऊ की घेराबंदी को तो आप जानते ही होंगे। तो इस बिल्डिंग में काफ़ी तपन उस वक्त सही थी, तोपे हो, कुछ भी तोपे। इनफैक्ट आप अंदर ज़रूर देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे काफ़ी बिल्डिंग्स हैं जिन्होंने तोपों का भी भार सहा है, आग सही है, तपन सही है। ये मैं आपको ले जाने जा रही हूँ रेसिडेंसी की सारी बिल्डिंग्स के, जो वीरों को, वीरांगनाओं को दर्शाती है, जो केवल नज़ाकत को नहीं, वीरता को डिफाइन करती, भाषित करती। दावत खाना, बैंक्वेट हॉल, आगे ये जगह कौन सी है? मैंने आपको तोपों के बारे में बताया था ना, तो तोपों का रिप्रेजेंटेशन सही मायने में अगर इन बिल्डिंग्स में कहीं पे है, अगर वीरों की रिप्रेजेंटेशन कहीं भी इस बिल्डिंग में है, तो इस बिल्डिंग में है। आइए जानते हैं क्यों। दावत हॉल, बैंक्वेट हॉल। मैं यहाँ रेसिडेंसी की इस बिल्डिंग पे खड़ी हूँ, जहाँ पे पहले ज़माने में 1857 की सीट से पहले अपने बैंक्वेट्स थे। ये नवाबों का बैंक्वेट हॉल जैसा था ये एरिया। अब अगर आप अंदर जाएंगे तो तभी आपको वो रॉयलनेस, वो नवाबीपन का एहसास ज़रूर होगा। ये बिल्डिंग एक ऐसी बिल्डिंग है, द बैंक्वेट हॉल, दावत हॉल है। ये हॉल जब मैंने अंदर देखा, मैं घूम क्यों? क्योंकि भले ही यहाँ पे सोफे नहीं पड़े, भले ही यहाँ पे कोई नज़ाकत अभी भी नहीं पड़ी है, यहाँ की ब्रिक्स, यहाँ की ईंटें, एक एक ईंट बोल रही है यहाँ के नवाबीपन। ये बिल्डिंग सही मायने में नवाबीपन को दर्शाती है, नवाबों के लिए जो बिल्डिंग उन्होंने खासकर अपने रहने के लिए बनाई थी, जहाँ पे उनका, समझ लीजिए, रेसिडेंसी बिल्डिंग का एक ड्राइंग रूम। I can't think. What am I supposed to? What am I supposed to do?
स्टेयर्स लेके जाना पड़ा था। और जब मैंने देखा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में से ये स्टेयर्स भी है जो नीचे लेके जा रही है, तब मैं समझ गई कि ये वो स्विमिंग पूल है जो हम देख रहे थे। और अब ये जो गार्डन में दिखा रही हूँ आपको, ये सबसे मधुर व्यू था यहाँ का। क्यों? क्योंकि जब इतनी बड़ी बिल्डिंग में से फाइनली बाहर का रास्ता दिखा और देखा कि इतने बढ़िया बिल्डिंग्स के बाद ये चिड़िया चहचहा रही है, ये मधुर पेड़ है, ये बड़े बड़े पेड़, तो ये हरियाली भरा स्वप्न जैसा लगा। देखा कि इतना बढ़िया नज़ारा यहाँ पे है, तो क्यों ना इसके मज़े उठाए जाए। अब मैं करेक्ट करना चाहती हूँ अपने आप को कि ये ट्रेजरी हाउस वॉज द मेन बिल्डिंग जहाँ पे तोपों की, समझ लीजिए, सलामी जैसी लगी थी। ये तोपों की बिल्डिंग है, रेसिडेंसी बिल्डिंग्स को काफी तोपे हैं। अब अगर हम अंदर देखें तो ये बिल्डिंग अपने में काफी दिलचस्प है, रोमांचक है। बताती हूँ कैसे। आइए, जब मैंने ये देखा, मैं एक्चुअली जो पीछे दावत खाना था, जब मैं वहां से देख रही थी, मैंने देखा कि वहां से कोई और बिल्डिंग दिख रही। और मैंने सोचा कि बिल्डिंग है कौन सी आखिर। फिर मैं यहाँ आई, ट्रेजरी हाउस। ये ट्रेजरी हाउस जहाँ थोड़ा बहुत दावत खाना जैसे ईंटें आपको लग रही होंगी, दावत खाना जैसे थोड़ा लग रहा होगा, पर ये बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंगली ब्रिटिशर्स ने एक जेल टाइप का बना रखा। रेसिडेंसी की उस बिल्डिंग में मैं यहाँ पे आके बैठी हूँ जिसका नाम है बेगम कोठी। अब ये कौन सी बेगम की कोठी है? मुख्तरा आलिया करके एक विलायती बेगम थी नसीरुद्दीन हैदर की, जिनकी स्टेप सिस्टर मतलब सौतीली बहन और उनकी माँ सब साथ में यहाँ पे रहती थी। उनकी सौतीली बहन ने इंटरेस्टिंगली 2 बिल्डिंग्स बनवाई थी यहाँ के जस्ट बगल। कौन सी थी वो 2 बिल्डिंग्स? एक थी इमामबाड़ा और एक थी मस्जिद, जहाँ पे अंदर स्टेयर्स बनी थी कि आप ऊपर उस मस्जिद में चढ़ के जा सकते। और ये है रसोई घर, बेगम कोठी के जस्ट बगल वाली रेसिडेंसी बिल्डिंग। रसोई घर, रसोई बिल्डिंग, जहाँ पे कहीं क्विजीन्स, कहीं डेलिकेसीज बनती थी। और ये है रिमिनेंस ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ रेसिडेंसी। इसको ज़रा एक लुक दर्शाइए, एक लुक दर्शाइए। रेसिडेंसी की एक बिल्डिंग्स में से एक थी रेसिडेंसी म्यूज़ियम्स। नाउ रेसिडेंसी म्यूज़ियम्स उसकी याद में, उनके हिस्टोरिकल नुएंसेस की याद में बनाई गई थी। ये फ़ोटोज़ मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे वीडियो लेना अलाउड नहीं था अंदर, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट क्लिक्ड अ फ़ोटो एंड आपके लिए।
जाते समय जब मैं यहाँ से निकल रही हूँ तो मैंने यहाँ पे एक क्रॉस का छोटा सा सिंबल देखा था